اس میں تیمم کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو پانی نہ پائیں یا پانی پائیں، مریض وہ پانی استعمال نہ کر سکتے ہو، سفر میں ہے پانی نہیں پا رہے ہیں، تو انہیں وضو یا غسل کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی کا ارادہ کریں، پاک مٹی سے وہ تیمم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ پاک مٹی سے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ تیمم یہ وضو کا لائق ہے، وضو پر کوئی شخص قادر نہیں ہے، جیسے کہ ایک صورت تو یہ کہ وہ پانی ہی نہیں پا رہا، اب تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ صورت کافی حد تک ختم ہے، پانی کا انتظام ہر جگہ الحمدللہ موجود ہے، وسائل ہے۔ بہرحال پانی نہیں پایا، کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ سفر میں کہیں ایسی جگہ پہ ہو، بیابان جگہ پہ ہو، جنگل میں پانی نہ پائے، نماز کا وقت ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کریں گے، یا پانی موجود ہے لیکن وہ شخص مریض ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کا تجربہ یہ ہے کہ پانی استعمال کرتے ہیں تو ہمارا قرض بڑھ جاتا ہے، یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اسے کہا ہو کہ آپ پانی کا استعمال کرتے اور مرض کا بڑھ جاتا ہے، یا آپ کے کسی جسم کے حصے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ پانی نہیں استعمال کر سکتے، تو اس کے لیے شدت میں تیمم کی اجازت فرمائی ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت دل میں ہو جائے کہ ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس سے چونکہ تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں، ایک نیت، یعنی آپ جب مٹی سے پاکی حاصل کرنا چاہیں تو نیت ہو جائے کہ ہم نماز کے لیے، قرآن شریف چھونے کے لیے جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے ہم مٹی کا استعمال کرنے جا رہے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام سوچ لیا آپ نے، وہ نیت ہو گئی، تو نیت فرض ہے۔ دوسرا، ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے کا مسح کرنا، جیسا کہ دھوتے ہیں، پھر چہرے پر ہاتھ ہو۔ تیسرا فرض یہ، ہاتھ دونوں مٹی پر مارے اسے، اگر مٹی لگی ہو تو اسے جھاڑ دیں، اور پھر بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کریں گے خوب اچھے طریقے سے، جیسے دھلتے ہیں، کوئی جگہ باقی نہ رہے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کریں، تیمم ہو گیا۔ تیمم میں بس یہ 3 باتیں فرض ہیں، نیت، ایک مرتبہ زمین پر مٹی پر ہاتھ مار کر کے چہرے کا مسح کرنا، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اچھا ہاتھ ہے، آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پہ دھول مٹی لگی ہوئی ہو، جو بھی چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں، زمین کے جنس سے ہیں، اس پہ آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں، جیسے کہ پتھر ہے، اس پہ دھول مٹی کچھ نہیں، لیکن وہ پتھر زمین ہی کے جنس سے ہے، آپ اس پہ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ دیواریں ہیں، اینٹ ہے جس کو پکا دی گئی ہے، ہاں وہ دیوار اس پہ کیمیکل چونا یا پینٹ وغیرہ لگا دیا ہے، چونکہ اب اس کے اوپر پینٹ چل گیا ہے، وہ پینٹ جو ہے زمین کے جنس سے نہیں، جیسے یہ دیواریں ہیں یا یہ ٹائلس ہیں، ٹائلس کے اوپر کیمیکل لگے ہوئے ہیں، تو اس پر ہاتھ مار کے تیمم کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی پتھر ہے سادہ، یا اینٹ ہے یا زمین جو بھی، تو اس پر ہاتھ مار کر کوئی ضروری نہیں کہ مٹی زمین ہاتھ میں لگے، کوئی صاف ستھری چیز ہے، مٹی ہے، مٹی کو پکا دیا گیا بڑھیا سے اس میں آگ میں، اب اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ گرد و غبار نہیں رہے گا، لیکن
हाथ मार के उस पर तैमूम करेंगे, तैमूम हो जाएगा। देखा गया है मिट्टी की और तैमूम करते हो जाता है। वही मैं बता रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हो उसी को बता रहा हूँ। मिट्टी में पका दिया, आग में पका दिया मिट्टी को, तो हाँ, तो वही मैंने सूरत बताया अभी ना कि मिट्टी को पका दिया आग में, तो उस पर कोई गर्दो गुबार नहीं, हत्ता कि साफ सुथरा बिल्कुल पत्थर रखे हुए हैं, उस पर क्या गर्दो गुबार है। लेकिन वो जमीन के जिन्स से है, आप हाथ मार के आप तैमूम करेंगे तो तैमूम हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी बहुत किसी की सर्दी पड़ रही है, कोई सोचे कि वजू ना करें, लाओ ठंडी का मौसम तैमूम नहीं करने को, तैमूम दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं होगा। हुक्म यह है कि ठंडा पानी नुकसान करता है तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। आग वगैरह का इंतजाम है तो फिर उसकी सिकाई कीजिए। हाँ, कि किसी ऐसी जगह है कि वाकई ठंडा पानी आपको मुज़िर है, नुकसान करता है, गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं है, गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, और ठंडा पानी आपका तजर्बा इसके ऊपर कि आप ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, नुकसान कर जाता है, तो तैमूम की इजाज़त होगी। लेकिन ऐसे अपने दिल से सोचना कि आप बड़ी ठंडी पड़ रही है, कौन वजू करे, लाओ तैमूम कर लें, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, फिर नमाज नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात भी लोगों के पास है, ठंडा पानी मुसीब है तो गर्म पानी के इंतजामात हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बालू रेत वगैरह सब जमीन ही की जिनस से है, जमीन है, बालू है, रेत है, ये सब जो है इसी के जिनस से है। आप किसी परेड में रेत दे दीजिए, वो जो साफ सुथरी आती है उस पर हाथ मार के कर लिए तैमूम हो जाएगा। यानी जमीन के जिनस से जो चीज़ हो उस पर हाथ मारना। और देखिए, जिस तरह वजू का तैमूम है, इसी गुस्ल का भी तैमूम, किसी के ऊपर गुस्ल फर्ज है और उसे नमाज अदा करनी है, पानी नहीं पा रहा है, या पानी है लेकिन वो इस्तेमाल पर काबिल नहीं है, वो इस्तेमाल करेगा तो मरीज हो जाएगा, पानी उसको मजीद नुकसान करता है, और गुस्ल की हाजत है तो उसके लिए भी इसी तरह तैमूम, जैसे वजू का तैमूम बताया मैंने, ऐसे ही गुस्ल का तैमूम। बस दिल में नियत ये हो जाए कि हम पाक हासिल करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। हाथ मारेगा और चेहरे पर हाथ फेरेगा, दोबारा हाथ मारेगा, दोनों हाथ को मिक्स कर देगा। पानी, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी नुकसान नहीं करेगा। और कहीं ऐसी जगह पर है कि गर्म पानी का इंतजाम नहीं और वाकई आपका तजर्बा है कि ठंडे पानी से नहाएंगे तो आप बीमार हो जाते हैं, या किसी माहिर डॉक्टर ने, मुसलमान डॉक्टर ने आपको बताया ठंडा पानी आपके लिए नुकसानदेह होगा, तो उसके लिए तैमूम की इजाज़त है। ऐसी सोच करके कि हम नुकसान कर जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो तैमूम की इजाज़त नहीं होती है। कभी बस औक़ात ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग आँख वगैरह की ऑपरेशन करवाते हैं, तो इसमें पानी लेंस उसमें पड़ता है, पानी मजीद होता है, डॉक्टर लोग सख्ती के साथ उनको मना कर देते हैं कि चेहरा आपको नहीं धुलना, पानी ना पड़े आप, क्योंकि आप नहाइएगा नहीं, सर पे पानी पड़ेगा तो जाहिर सी बात है चेहरे पर आएगा। और इस पर लोगों का तजर्बा भी है कि उसमें लेंस है, पानी जाएगा या पानी ऊपर से पड़ेगा तो नुकसान कर देगा, तो उनके लिए अब गुस्ल की ज़रूरत है तो कंधे से नहाएं। कहाँ से? कंधे से पानी डालें और ये हाथ तर कर लें और सर, चेहरे वगैरह को खूब अच्छे से मस्क कर लें, उनके लिए इसकी इजाज़त होगी। और वज़ू करना है तो उनके लिए भी ये इजाज़त है कि चेहरा ना धोएं, चेहरे का पानी भिगा लें और इसको खूब अच्छे तरीके से जैसे धोते हैं इसी चेहरे पर हाथ फेर लें, बकिया और हाथ, पैर और सर का मसला सब धुलेंगे, हाथ धुलेंगे, पैर धुलेंगे, क्योंकि यहाँ पानी नुकसान नहीं कर रहा है, पानी नुकसान चेहरे पर कर रहा है, इसलिए चेहरे पर पानी नहीं डालेंगे। आमतौर से लोग ऑपरेशन कराने के बाद ये बातें उनके साथ रहती हैं, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करते, तो कितने लोग नमाज भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम तो पानी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, गुस्ल हमारे पर फर्ज है, या वज़ू कैसे करें, उनके लिए शरीयत ने तरीका बताया है।
कि गुस्ल करना है तो कंधे से नहा लें और हाथ भिगा लें पानी से और सर वगैरह पर चेहरे पर फेर लें। वजू करना है तो वजू में ये है कि चेहरा ना धोए बाकी और आज़ा को धो लें, चेहरे का मसह कर लें पानी से, मिट्टी से नहीं मसह करना उसमें, पानी से हाथ तर कर लेंगे और हाथ उछाल लेंगे ताकि पानी ज़्यादा ना लगे और ना बुझे हो। उसके बाद हाथ फेर लें। एक मसला कि वो जैसे आज जुमा है और नहाने की हिम्मत दवाई जैसे नहीं नहाए वहाँ पास साफ है तो कुछ हालत में क्या यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। गुस्ल करना सुन्नत है। अगर पाक साफ है तो गुस्ल करना सुन्नत है। या होता है ठंडी का बहुत सख्त मौसम है तो ज़ईफ़ हो जाते हैं, तराज होते हैं, जवान हो तो कभी ना कभी नहा लिए, लेकिन उम्र दराज की भी दिक्कत होती है अगर गुस्ल करने में, तो पाक साफ में कोई बात नहीं, नमाज जुमा अदा करेंगे, नमाज जुमा को पढ़ लें। गुस्ल करना सुन्नत है, इसका सवाब मिलता है जुमा के दिन गुस्ल करने से। जुमा के दिन आप गुस्ल करते हैं इस नीयत से जैसे सफ़र के दौरान में हमारी नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो इसके बारे में शरीयत या हदीस क्या कहती है? मान लीजिए हम 2 दिन या 3 दिन सफ़र में रहते हैं। दूसरा सवाल ये कि मतलब कोई आदमी पहले नमाज़ नहीं पढ़ता था किसी कारण से, और जो भी वो गुर्बत में रहा हो कैसे भी रहा हो, लेकिन अब वो नमाज़ पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई सूरह याद नहीं, या मान लो वो उस तरीके से है नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, तो ऐसे हालात में उसमें क्या फ़र्ज़ है या किस हिसाब से उसे कहे, ताकि जैसे हमसे कोई अगर पूछता है तो हम उसे सही तरीके से बता सकें कि आपको इस तरह से नहीं इस तरह से करना है। पहला सवाल ये कि नमाजें